اتنا خطرہ اس وقت ہے اس وبا سے، بہر طور کیا کیا جائے، مگر ہم آپ کو روزانہ یہ یاد کرواتے ہیں کہ آپ محض 20 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کے بہترین ڈیفنس کر سکتے ہیں اس وبا کے خلاف، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے اور اپنے ہم وطنوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. اور ہم روزانہ یہاں پہ اپنے ہاتھ بار بار دھوتے ہیں، کبھی آپ کے سامنے اور کبھی آپ کے بغیر بھی، اور استعمال کرتے ہیں ہمیشہ ڈیٹول کا ہینڈ واش لوشن. اب ڈیٹول کا ہینڈ واش لوشن فائدہ مند اس لیے ہے کہ یہ جراثیم کش بھی ہے اور وائرسز کو بھی ختم کرتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ یہ اچھی طرح فارمولیٹ ہوا ہے تو آپ کے ہاتھوں کو خشک نہیں ہونے دیتا، اور جس کی وجہ سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ بہت خشک ہو گئے اس لیے بار بار دھوئے نہیں جاتے. میں ہمیشہ اس پورے مہینے میں بھی آپ کو کہا ہے اور ویسے بھی ایز اے ڈاکٹر کہوں گا کہ جب تک آپ کے لیے کوئی اور چیز نہیں نکل آتی، حالانکہ ویکسین آ چکی ہے اور اس کو بھی لگوانے کے سلسلے میں لوگوں کو عجیب و غریب توہمات ہیں، تو کم از کم ڈیٹول کا ہینڈ واش لوشن استعمال کر کے اپنے ہاتھ صاف رکھیے تاکہ آپ بیماری کے ٹرانسمیٹر نہ بنیں. اس کے علاوہ ڈیٹول کو جو سلوشن ہے ہمارا ڈیٹول کا، اس کو بھی ان تمام چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلا گھر پہ کپڑا پھیرنے کے لیے، سرفیسز کو صاف کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، اور پھر ہمارے پاس ڈیٹول کا ڈس انفیکٹنٹ اسپرے بھی ہے جو تمام جگہوں پہ اسپرے کر کے کم از کم وہاں موجود وائرسز اور بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے. میں اس وقت ہما کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمارے دونوں کے درمیان دو چرغے پوری شان سے جلوہ افروز ہیں. بالکل. اچھا، چرغے کا نام آتے ہی یقین کیجئے ہما دل میں ایک لہر سی اٹھتی ہے کہ بہت مزے کا چٹپٹا سا ہوگا. بالکل، اور لاہوری چرگا اسپیشلی چونکہ بہت مشہور ہوتا ہے لاہوری چرگا. اچھا، پتہ ہے کیوں مشہور ہوتا ہے؟ کیوں؟ ہما اس لیے کہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، یعنی میرے بچپن کی بات ہے اور آپ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں. تو لاہور میں ایک ریسٹورنٹ کھلا جس کا نام تھا نعمت قدا. یاد ہے کسی کو؟ ہاں، وہ تمام لوگ جو کہ میری عمر کے ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں جانتے ہوں گے کہ لاہور میں ایک ریسٹورنٹ تھا نعمت قدا. نعمت قدا وہ پہلا ریسٹورنٹ تھا جس نے چرگا انٹروڈیوس کیا، اور لوگ دور دور سے جا کر نعمت قدا سے چرگا لے کر آتے تھے اور وہ بہت عمدہ پیک کر کے دیتے تھے. تو کم از کم کوئی چیز تو لاہوری ہے. ہم تو یہاں سرفراز پلاؤ کھانے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پلاؤ لاہور کا نہیں، بنو کا ہے، یہ افغانی پلاؤ ہے، یہ قبائلی پلاؤ ہے، یہ پشاوری پلاؤ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ اکثر ہوتا ہے، جس طرح آپ پشاور جائیں نا تو لکھا ہوتا ہے وہاں پہ لاہوری آئس کریم، تو مطلب یہ والے معاملات جو ہے نا دونوں سائڈ پہ چلتے ہیں. اچھا بھائی، یہ آپ نے بہت عمدہ بات کی. کم از کم آج یہ پتا چلا کہ شہروں کے درمیان التفات بڑھانے کے لیے، کاروبار کو ایک پش دینے کے لیے کسی چیز کا نام بھی اس شہر پہ رکھیں، دور افتادہ کسی شہر پہ نام پہ رکھیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں کراچی جاتا ہوں تو وہاں بلوچی آئس کریم سب سے مشہور ہے، آپ کو پتہ ہی اس بات کا. اور مگر یہی قصہ ہے سارا. بہر طور میں یہاں پہ تو آج ہم آپ کو لاہوری چرگا ہما کا بنا ہوا کھلائیں گے، اور اس کے ساتھ اگر اس کو تھوڑا سا موئسٹ کرنا ہے اور مزیدار بنانا ہے تو مچلز کی ٹمیٹو کیچپ. اجازت ہے کہ نہیں مچلز کی ٹمیٹو کیچپ کی؟ اس کے ساتھ سرو کریں گے ہم. فرائی جو اتنا مزے کا آپ کو اس لیے لگ رہا ہے جس آئل میں میں نے فرائی کیا ہے، کشمیر آئل، کشمیر کنولا آئل. جی آپ فرما رہے تھے سب. کیچپ تو مجھے ویسے بھی بڑا پسند ہے. اچھا جی بھائی، میں تو پوچھنا تھا کہ دراصل، مگر میں کیا آپ آف ایئر پوچھوں گا کہ ساروں کا بھلا ہو جائے گا اور میں اتنے لوگوں کا بھلا نہیں چاہتا. میں نے سرفراز سے پوچھنا تھا کہ رمضان میں یہ چہرے کی رنگت، یہ لالی، یہ سرخی، یہ حسن اور وجاہت، اس کا کیا راز ہے؟ ابھی بتائیں گے آن ایئر یا بعد میں؟ وہ میرے تو بھی زیادہ خسیس ہے، کہتا ہے میں نہیں دس رہا، جو ہے وہاں حسین تو میں بھی رہی، میں ہی رہنا، اور کسی کو نہیں بتا رہا. کیوں ہما؟ بالکل. اچھا خیر، لیکن ہما بہت اچھی بتائیں گے. ہما بہت اچھی ہے، اپنی ساری ریسیپی بتا دیتی ہے. جی ہما، چرگا کیسے بنائے؟ چکن آپ نے لینا ہے، ہول چکن لے لینا ہے، اسے کٹس لگا لینے، اور کٹس لگانے کے بعد آپ نے جو میرینیشن کرنی ہے اس میں سرکہ اور لیمن جوس دونوں لینے. اس کے علاوہ نمک مرچ ہلدی، تھوڑی سی اجوائن بھی میں نے اس کے اندر لگائی ہے، زیرہ تھوڑا سا دردرا کر کے وہ لگایا ہے، دھنیا پاؤڈر استعمال کیا ہے، نمک مرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لگائیے، لہسن ادرک جو ہے کٹا ہوا وہ استعمال کیا ہے ساتھ میں. لیکن انڈا اور کارن فلاور وہ آپ نے ضرور لگانا ہے تاکہ اس کی میرینیشن اور اوپر جو اس کی تھوڑی سی ایک کرسٹ سی ہوتی ہے وہ بالکل رہے. تو میں نے اس کو پہلے اسٹیم کر لیا تھا، اور اسٹیم ہی کرنا چاہیے چونکہ چکن جب ہول ہوتا ہے اور کٹس نہیں ہوئے ہوتے تو اس کو پکنے میں تھوڑا دیر لگتی ہے. تو میں نے اسٹیم کر لیا تھا، اسٹیم کر کے نکالا اور آئل جو ہے اس کے اندر فرائی کر لیا تھا، اور ابھی ہم اس کو سرو کریں گے. جی بہت عمدہ بات ہے. اچھا، اکثر لوگ اس میں تھوڑا سا رنگ ڈالتے ہیں، پیلا رنگ اور لال رنگ. پیلا اور لال مکس اس لیے کرتے ہیں کہ اورنج کلر آ جائے. تو فوڈ کلر میں تو اتنا
पसंद नहीं करती, ना रिकमेंड करती हूँ, तो मैंने थोड़ा इसको थोड़ा सा ऐड किया ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि वो पकड़ी बहुत गई ना, दाल। थोड़ा सा ऐड जरूर किया होगा। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात मुझसे कहाँ बच के जाएंगी हुमा, जो जो करती हैं, जो जो नहीं करती वो भी मैं जानता हूँ बिल्कुल। हुमा इसके अलावा क्या बनाया है? अच्छा जी, आलू चने की चाट बनाई है, और उसके लिए एक मैं टिप दूंगी, काले सफ़ेद चने मिक्स लिए थे मैंने, आलू है, उसके अलावा प्याज, टमाटर, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई वो साथ में ऐड करनी है आपने, थोड़ी सी दड़ा मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला, नींबू भी ऐड करें, और इमली जो है वो भी मैंने डाली है, लेकिन साथ में जिस तरह अभी मैंने इस वक्त बना ली है तो मैंने बर्फ़ थोड़ी सी ऐड कर दी क्यूब्स। जब वो मेल्ट होगी और साथ में ठंडे हो जाएंगे चने और आलू, तो वो बड़े मज़े के इफ्तार के वक्त जो है। यकीन मेरे ख्याल में ये बड़ी हेल्दी चीज़ है, मगर सरफराज क्या करें, हमारे यहाँ तो जो लाहौर में चने हैं वो भी काबली चने हैं। सफ़ेद छोटे चनों को हमेशा काबली चने कहा जाता है, और मुझे यकीन है कि काबुल में जाके सारे कहते होंगे लाहौर दे मुर्ग छोले। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, आप कभी काबुल वगैरह गए हैं? नहीं, मैं तोरखम तक गया हूँ जी। तोरखम तक गए? तोरखम तो मैं भी कई दफ़ा गया हूँ, ये आखिरी टाउन आता है जिसके बाद अफगान सरहद शुरू हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आपके यहाँ चूँकि आपका ताल्लुक महमद एजेंसी के साथ है, तो क्या कोई मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं इफ्तार पे, या यही सब पकौड़े, समोसे, दही भल्ले वगैरह होते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ पे थोड़ा सा ये ज़रूर है कि एक तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर होना शुरू हो गया है। वो जो एरिया था पहले बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था जी, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। उसमें ये होता है डॉक्टर साहब कि वो स्ट्रेट अवे फल फ्रूट होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और फिर उसके बाद लेकिन वो स्ट्रेट खाने पे जाते हैं। आई मीन के मतलब जिस तरह ही अफ्तारी होती है वो खाने पे जाते हैं। हम खुद भी लाहौर पठान मोस्टली जो है ना, हम लाहौर में भी हम भी ये करते हैं, जिस तरह बस अजान हुई और स्ट्रेट बस खाना खा लिया, उसके खाने के साथ ज़ाहिर पकौड़े वगैरह ये सारी चीज़ें तो होती हैं, समोसे। मैं इतने आस और उम्मीद से सवाल पूछा था कि यार मेरे मौला वो कहेंगे कि नहीं पकौड़े शकौड़े सब पंजाब में होते हैं, वहाँ तो ये बड़ी बड़ी बकरे की और दुम्बे की रानें होती हैं, उस पर दुम्बे की कढ़ाई होती होगी, उस पर चप्पल कबाब होते होंगे, उसके बाद पता नहीं और क्या क्या होता है। बहुत मायूस किया आपने। मगर सरफराज, एक मैं आपको बात बताऊं, एक चीज़ जो हम रोज़ाना बहुत यहाँ पे एंजॉय करते हैं वो मीज़ान की अल्ट्रा रिच चाय है। आप यकीन करें, जब भी रोज़ा खुल जाता है, जो मर्जी भी आप खा लें, वो जो थकावट एक होती है और जो एनर्जी को रिवाइव करना है, उसके लिए हमने ये देखा है कि सबसे उम्दा मीज़ान की अल्ट्रा रिच चाय है, क्योंकि इसका रंग भी तेज़ आता है और जायका भी तेज़ आता है। मगर ज़ाती तौर पर मैं आपको बात बताऊँ कि जब ये पकाती हैं कश्मीर के कनोला और सनफ्लावर ऑयल के अंदर, तो इतनी ज़्यादा गिरावट और भारीपन महसूस ही होता है। यही बात है ना जी उमा? बिल्कुल। लेकिन उमा, एक बात बताऊँ आपको मैं, मुझे पेशावर से बेइंतहा मोहब्बत है। पेशावर से मोहब्बत की बहुत सारी वजह है। एक तो आप में से जो पेशावर नहीं गए, कभी वहाँ पे जाके देखें। अल्लाह करे कि आपके चंद पेशावरी दोस्त हों, आपको पता चले कि लॉयल्टी और गर्मजोशी और सादा लोही में वो लोग कितने उम्दा हैं। होते बड़े ज़बरदस्त सब कारोबार हैं, आप जब कारोबार करते हैं तो बड़े कांटादार करते हैं, मगर जब मोहब्बत करते हैं तो बड़ी शदीद होती है। सर, दो ही तो चीज़ें हमें, या मोहब्बत है या मेहमान नवाजी, और तो सब कुछ आप लोगों के पास। अच्छा, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि जहाँ तक मेरे दोस्त सरफराज का ताल्लुक है, ना सिर्फ मुझे इनकी मोहब्बत हासिल है, बल्कि इनकी मेहमान नवाजी का मैं कितनी ही दफ़ा लुत्फ़ उठा चुका हूँ। और हुमा, 2-3 दिन के बाद हमने यहाँ पे अपने पेशावरी दोस्तों के लिए एक ट्रिब्यूट देने के लिए एक ऐसी चीज़ बनानी है जो कि पेशावरी हो। अच्छा, मैं आपको सरफराज बताऊं कि मेरा ताल्लुक पेशावर से ऐसे था कि बरसों पहले मेरी दादी अम्मा ब्याह के 14 या 15 साल की उम्र में पंजाब आई थी। अच्छा, और वो पेशावर से आई थी। अच्छा, वो पठान नहीं थी, वो जो शहरी नहीं होते, शहरी वो थी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, 15 साल की उम्र पे वो पंजाब आई और एक छोटे से गांव में आके ज़ाहिर मेरे दादा के साथ रहना शुरू कर दिया। उसके बाद कई नस्लें पैदा की, माशाल्लाह उनके 11 बच्चे थे। तकरीबन 80 साल की उम्र पे उनकी वफ़ात हुई। तो इसका मतलब ये है कि आप सोचें कि कितने 66 साल वो पंजाब में रही हैं। मगर यकीन कीजिए, पंजाब में 66 साल रहने के बावजूद उनके अंदर से हम पेशावर ना निकाल सके। आप यकीन करें कि जब भी सर्दियां आती थीं तो सब बच्चों को जमा करके कहती थी, आओ सब लोग को गटा रिजे पका के दीजिए। यस, एग्जैक्टली। अब देखिए, मुझे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, लेकिन एक पंजाबी बच्चे को ये पता हो कि गटा रिजे क्या है और कितनी उम्दा कंफर्ट फूड की मिसाल है। ऐसा ही है। आपके यहाँ पकता है गटा रिजे? पकता है। मैं कम खाता हूँ, लेकिन पकता है जी, अक्सर पकता है। अच्छा, आप खुद कम तो खाते हैं, खिलाते तो होंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जब आप फिर नहीं, मैंने तो वाकई सर इन सर्दियों में खुदा के लिए, अब मेरी दादी नहीं रही, कम से कम मेरा दोस्त तो है गटा रिजा खिलाने वाला। ख्वातीन हज़रात, आप लोग इन चीज़ों को जानते नहीं। गटा रिजे का मतलब पता है क्या है? गटा रिजे का मतलब है मोटा चावल। गटा मोटे को या बड़े को कहते हैं ना? बड़े को जी, मोटे। अच्छा, मसलन जब मुझे पठान क्यूट सा लगता है तो पता है मैं क्या कहता हूँ? हाय गटा पिशो।
इनको बताइए खट्टा पिशो समझिए गलत मतलब है। खट्टा पिशो का मतलब है मोटी बिल्ली। बड़ी बिल्ली, मोटी बिल्ली। सर बड़ी बिल्ली क्या हुआ? छोटी बिल्ली, बड़ी बिल्ली, मोटी बिल्ली। लेकिन डॉक्टर साहब आपने किसी की तारीफ करनी है, कुछ और कहे ना। खट्टा पिशो तो मतलब मुनासिब लफ्ज नहीं है। सर आपको क्या पता मुझे बिल्लियां कितनी पसंद है, खासतौर जब मोटी हूँ। अच्छा जी, बाहर तौर हुमा, तो हमने वादा किया है कि अब हम कोई पेशावरी चीज़ बनाएंगे, और ये गट्टा रिजे है, मैं आपको बताते बताते दरमियान में रह गया। बहुत उम्दा मटन, मक्खन और बहुत नए चावल, इनको मिला के खिचड़ी बनती है। और आप में से तो शायद याद ही सब लोग बिरयानी खा खा के बुरा हाल हो गया आपका। खिचड़ी भी एक चीज़ होती थी, खुदा की कसम, बच्चे को बुखार आ जाना, गला ख़राब हो जाना, माओ ने खिचड़ी बनानी ऐसी कि एक लुकमा हलक से उतरना, तमाम जरासीम बीमारियां साथ ही खत्म हो जाने। ये जो हुमा ने बिरयानी बना दाल भी नहीं मिलती इतने आसानी से, मूंग की दाल, वो वाली माएँ भी नहीं मिलती, दाल को रो रही, माएँ भी नहीं मिलती वो वाली। ख़वातीन हुज़रात, इस स्टेज पे हम चाहेंगे कि हम एक नात को शामिल प्रोग्राम करें। हमारे सामने हमारे एक दोस्त बैठे हैं और बड़ी देर से इंतज़ार करें। मैं दरख्वास्त करूँगा कि सर आप एक नात शरीफ जो भी आप चाहें वो पेश कीजिए। मैं की हुई हमदे बारी ताला के चंद इशार पेश करता हूँ। सुन फरियाद मेरी, ए रब कायनात, सुन फरियाद मेरी। बन जाए मेरी बात, सुन फरियाद मेरी, ए रब कायनात, सुन फरियाद मेरी। तू मालिक व मुख्तार है, तू रहीम तू करीम। तू मालिक व मुख्तार है, तू रहीम तू करीम। तेरी है कायनात, सुन फरियाद मेरी। तेरी है कायनात, सुन फरियाद मेरी। दुख दर्द के मारों का मौला तो है सहारा, मेरे मौला मौला मौला। दुख दर्द के मारों। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जी 7 अप हमारी हो जाएगी पीच के साथ, तो पीच पंच कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नहीं जी, ये अभी एक दफ़ा फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे ग्लासेस में।
ये आज की क्विक सी रेसिपी थी जी 7 अप के साथ। उमा, किस कदर उम्दा चीज़ है कि आपने आज भी बहुत ही अच्छा 7 अप और एक सीजनल फ्रूट के साथ मिलकर ड्रिंक बनाया है। अब सिर्फ एक काम करना रहेगा जो बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि मेरा मग उठा के फ्रिज में रख दें ताकि 1.5 घंटे बाद जब रोज़ा इफ्तार हो तो ये ठंडा हो, क्योंकि आपकी बर्फ़ और आपके पानी ने तब तक इसको ठंडा रहने नहीं देना। ख़वातीन हज़रात, हम चलते हैं दोबारा अपने क्विज राउंड की तरफ। मेरे साथ हमारे दोस्त खड़े हैं जिनका नाम सरफराज महमद है, और इनकी वजह से मैं अभी से आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे सवालात का ताल्लुक KPK से होगा। अपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जानना आपकी फ़र्ज़ भी है और मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है। हमारे साथ जो लोग आज शामिल हैं यहाँ पे, उनमें सबसे पहले हैं मुअज़्ज़र रहमान साहब। मुअज़्ज़र रहमान साहब का ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है और वहाँ पे ये प्री मेडिकल पढ़ रहे हैं। उनके साथ खड़ी हैं इकरा सलीम साहिबा, और इकरा सलीम साहिबा PSRD कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज से आई हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ जानते हैं कि PSRD का क्या मतलब है, सिवाय मेरे और तुम्हारे? मैं बताऊँ क्या मतलब है? पाकिस्तान सोसाइटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड, 111 फिरोजपुर रोड लाहौर। अब बताओ, पता भी रखता मैं तुम्हारे इलाके का, ऐसी क्या बात है? शाबाश बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल, आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा। बेटा जी, बाकी भी डॉक्टरों को बुला के पूछ रही जिन्होंने किसी ने पता होगा। समझ आई मेरी बात की? और आखिर में हमारे साथ हैं जनाब मोहसिन महर साहब। मोहसिन महर साहब तारीख के तालिब इल्म हैं और उनका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से है। मुझे मायूस ना कीजिएगा और काइंडली अपने कॉलेज की लाज ज़रूर रखिएगा और आप भी अपने इदारे की लाज रखिएगा। मैं सबसे पहले सवालात का आगाज़ आपसे करूँगा मुआज़ से, ठीक है जी? मुआज़, ये फरमाइए कि वो कौन सा परिंदा है जो अपनी चोंच से मार मार के दरख्त में सुराख कर देता है, लकड़ी में सुराख कर देता है, जिसकी चोंच इतनी मजबूत है कि वो बार बार चोंच मार के लकड़ी के अंदर सुराख कर देता है? ऐसा परिंदा कौन सा है? वुड पैकर। वुड पैकर का मतलब ये लकड़ी को पैक करने वाला। वुडी वुड पैकर के कार्टून नहीं देखे हुए आपने? देखे हुए ना? याद आ गया कि नहीं आ गया? अगले सवाल और होशमंदी के साथ ये फरमाइए, पाइथन को उर्दू में क्या कहते हैं? पाइथन को PYTHON। अच्छा, एनाकोंडा को उर्दू में क्या कहते हैं? अजदहा। अजदहा। प्री मेडिकल वालों, पाइथन भी क्या होता है? अजदहा। जरा बहुत बड़ा हो जाए और फिल्मी हो जाए तो उसको फिर हम एनाकोंडा कहते हैं। पक्की बात है, तुम्हारे सवाल में फिर भी जवाब सही मान लेता हूं। अगली चीज ये बताइए कि एहराम, पिरामिड्स किस इस्लामी मुल्क में पाए जाते हैं और बहुत मशहूर हैं? मिस्र। मिस्र। वेरी गुड। 3 सवाल आपसे हो गए और 3 सवाल ही आपसे और होंगे। ये फरमाइए, टुटनखामेन या तोतख आमोन का ताल्लुक तारीख में दुनिया के किस मुल्क के साथ है? इराक। नहीं बेटा, इराक से नहीं है, आपका सवाल गलत है। इनका ताल्लुक मिस्र से है। ये फिराना मिस्र में से एक बहुत मशहूर फेरो हैं, ठीक है जी? अगला सवाल आपसे ये करते हैं और प्री मेडिकल की बात कर लें हम कि नहीं करते? ये बताइए, फ्लोएम और जाइलम 2 बॉटनी की टर्म्स हैं। फ्लोएम का क्या मतलब है? सर टिश्यू है। फ्लोएम एक टिश्यू है जो खुराक प्लांट्स में। एक टिश्यू नहीं है, एक ट्रैक्ट है जिसके जरिए खुराक का नेम खुराक जाती है। और जाइलम से क्या होता है? पानी। नहीं, मुकम्मल तो ठीक नहीं है, लेकिन चलो तुम्हारी बात साल्ट्स ऐड कर लें इसमें। बेटा जी, एक ऊपर जाता तो कहीं निकलता भी होगा कि नहीं निकलता होगा? 2 रोया ट्रैफिक होता है दुनिया में, हर चीज़ ऊपर नहीं जा रही होती, नीचे भी आती है वापस। ये कैसा है? अगला सवाल आपसे पूछते हैं और जरा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। ये बताइए कि आपका ताल्लुक लाहौर से या किसी और शहर से? सियालकोट से। सियालकोट से है। एक्सेलेंट। ये बताइए, अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली एक मशहूर शख्सियत का नाम? सियालकोट ज़फ़र अली खान। नहीं, मेरा तो ख्याल था आजकल हर बंदा यही कहेगा फिरदौस आशिक अमान। उनसे ज्यादा कोई आजकल मशहूर है नहीं, लेकिन बेटा फैज अहमद फैज का ताल्लुक भी सियालकोट से था। आपके नंबर हो गए। अब हम आते हैं इकरा सलीम की तरफ। इकरा, आप चूंकि PSRD से आई हैं तो मेरा पहला सवाल ये है, पोलियोमाइलाइटिस किस इंसानी टिश्यू को इफेक्ट करती है? इसकी वायरस, पोलियो वायरस किस इंसानी टिश्यू को इफेक्ट करती है? स्केलेटल मसल को, पेरिफेरल नर्व को या स्पाइनल कॉर्ड को? बेटा, रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड में भी बहुत बड़ी डिसेबिलिटी थोड़ी। स्पाइनल। वेरी गुड, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटीरियर हॉर्न को। अगली चीज हम आपसे पूछें, ये फरमाइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बैंडेज है जो कि हड्डियां टूटी हुई हों तो उनको जोड़ने के लिए, अपनी जगह पर रखने के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है कास्ट के अंदर। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं?
नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे चले जाते हैं। क्योंकि एक जगह थी पेरिस में जहाँ से जिप्सम के बहुत बड़े ज़खायर निकलते थे, इसलिए इसका नाम अभी तक प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, वरना अब तो दुनिया जहान में कई जगह से और भी निकल रहा है। अगला सवाल आपसे करते हैं, और सवाल का ये है कि ये बताइए कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो जिनका बहुत बड़ा दर्जा है, ये फरमाइए कि उनके दादा हजूर का नाम क्या था? बेटा तुम्हारे नबी के भी दादा हजूर वही थे, इसलिए कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि आप मुंह फिजाओं में सोचना शुरू कर। अब्दुल मुत्तलिब। बिल्कुल, क्यों नहीं थे? उनके चचा के बेटे थे कि नहीं? तो दादा तो एक हुए ना। जी बिल्कुल। तो लेटरल थिंकिंग भी से कहते हैं, सोचना पड़ता है। समझ आ गई मेरी बात की? ये फरमाइए बूतराब, बूतराब किसकी कुनियत थी? बूतराब नहीं पता आपको? नहीं। कोई बात नहीं, हजरत अली की, हजरत अली की कुनियत बूतराब थी। बूतराब सरकार दो आलम ने उनको एक दफ़ा कहा, जब वो मिट्टी पे लेटे हुए तो कहने लगे ए मिट्टी के बाप। तो बूतराब का मतलब है मिट्टी के, तुराब होता है मिट्टी। अगला सवाल आपसे करता हूँ, अभी तक आप परफॉर्मेंस की खास अच्छी नहीं जा रही, मेरी मदद शामिल हाल है, वरना आप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म करी, इसलिए होश करो थोड़ी सी और उसके मतलब एक सोचो कि क्या करना है। KPK आपका एक बहुत बड़ा सूबा, बहुत हसीन सूबा है। पेशावर के अलावा जो कि दारुल खिलाफा है KPK का, KPK के किसी बड़े शहर का नाम बताएं जो आपको पता है। आपका सूबा, आपके मुल्क के 5 सूबों में से एक सूबा, पेशावर के अलावा किसी और बड़े शहर का नाम बताएं। सर मैं क्यों खुश होता हूं कि मेरा दोस्त जो है वो पठान है, इसलिए कि एक शहर नहीं 25 शहर हैं जो मैं जानता हूँ। कोयटा। ओए बेटा कुर्बान जाऊं तुम्हें, KPK और बलूचिस्तान के दरमियान कोई फ़र्क रहने दो। ख़ातिन हज़रात, रोज़ाना आप लोग मुझ पर बहुत तनकीद करते हैं। मैं यहाँ से जाने के बाद रोज़ाना इफ्तार डिनर देने पर जाता हूँ, डॉक्टर साहब आप बड़े ज़ालिम हैं, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल सवाल करते हैं। कभी बच्चियाँ एक ला के देखो कि पता है क्या पता है अपने मुल्क के बारे में। खुदारा प्लीज़ बेटा, कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। अगला सवाल आपसे और आखिरी सवाल ये है, कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के किसी मशहूर शहर का नाम बताएं। बेटा बलूचिस्तान का कोई एक शहर कोयटा के अलावा? कोई बात नहीं बेटा, ये आपका सवाल। सिब्बी, योब, चमन, कल्लात, ज़ियारत, मजा ही सब चीज़ें हैं। अच्छा डिप्रेस ना हो भी तो आपके साथ चांस है बस राउंड के अंदर। भाई साहब अभी तक मेरा जो है ना बर्दाश्त का वो थोड़ा सा मादा जवाब दे रहा है, तो अगर मेहर साहब आप होश में हैं तो आपसे सवाल करूंगा, ठीक है जी? मेहर साहब आप तारीख के तालिब इल्म हैं, तारीख के तालिब इल्म हैं ना आप? जी बिल्कुल। ये फरमाइए कि ज़ार्स किस मुल्क के शहनशाह होते थे? ज़ार्स, CZAR। सब दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क था, जार ऑफ, आपने सुना नहीं? द लास्ट जार, कभी सुना इन लोगों का नाम कि नहीं सुना? नो सर। अच्छा बेटा, ये रशिया के इंपीरियल जो हेड होते थे, जो होते थे वहाँ के शहनशाह, उनको जार कहा जाता था। और ये बात ऐसी है कि तारीख के किसी भी तालिब इल्म को पता होना चाहिए। अगला सवाल जी, अगला सवाल आपसे हम करते हैं। ये बताइए कि हिजरत मदीना के वक्त सरकार दो आलम ने किसको अपने बिस्तर पे लिटाया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। बहुत उम्दा बात है। ये फरमाइए कि सरकार दो आलम ने हिजरत मदीना के वक्त किस गार में क़याम किया? गारे हिरा। बेटा एक ही गार नहीं था, गारे हिरा के अंदर वही आई थी, ये दूसरा गार है, गारे सौर। गारे सौर। बहुत उम्दा। ये फरमाइए, और ये मैंने कह दिया तो हो गया, तुम्हारा सवाल आधा आ जाइए, वो मान लें तो कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है जी? आजकल वो शफकत महमूद साहब बहुत कहते रहते हैं कि बगैर टेस्ट के बच्चों को पास कर दिया जाए। ये वाकई इनको यहाँ से करो, डिग्रियाँ दे दो सब बेहतर होगा। तो निज़ाम तालीम का हाल है शफकत महमूद साहब, कभी सोचें, इस प्रोग्राम को देखें, पता चले कि जो स्कूलों में पढ़ाया क्या जा रहा है और बच्चे उसमें से हासिल क्या कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिसके बारे में लोग जो है इतराते नहीं मरते कि हम रावियन हैं, रावियन हैं, रावियन हैं। आजकल देखो रावी सुख गया तो भी की हाल है GCU का। आगे चलते हैं बेटा, मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है बेटा, अपने यूनिवर्सिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये फरमाइए उर्दू के कौन से बहुत बड़े शायर आपके कॉलेज के उस्ताद भी थे और आपके कॉलेज के वार्डन भी थे आपके हॉस्टल के? बड़े शायर तो अल्लामा इकबाल थे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी वहाँ पे पढ़ चुके हैं बिल्कुल, लेकिन जिनका बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मगर एक और शायर थे जो आपके हॉस्टल के वार्डन भी रह चुके हैं। और बेटा जी सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब, ठीक है, उनका नाम सुना ना आपने? यस सर सुना। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब का जिक्र आपके कॉलेज में होता है या नहीं होता? सर कॉलेज में नहीं। अच्छा चलिए बेटा, यहाँ तक ये हो गया।
ख़वातीन हज़रात, अब हम जल्दी से बज़र राउंड कर लें तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। बज़र राउंड में ये है कि जो सवाल पूछा जाएगा उसमें सबसे पहले जो बज़र दबाएगा उसके साथ हम उससे बात करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो, याद रहेगा सबको। ये फरमाइए, अल्लामा इकबाल आपके कौमी शायर हैं, उनकी किसी भी एक नज़्म के मजमूए का नाम बताइए। सबसे पहले आप कलियात इकबाल। सर, कुलियात इकबाल एक मजमूआ नहीं, कुलियात का मतलब है कुल कलाम, कुल कलाम यानी कि सारे मजमूए से शामिल होते हैं। या फरमाइए बांगे तरह। वेरी गुड। आपका अगला सवाल मैं ये करता हूँ, ये फरमाइए कि इकबाल की उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी के मजमूए हैं? फारसी में। वेरी गुड। दूसरा सवाल भी आपका बिल्कुल सही हो गया। तीसरा सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूँ, ये फरमाइए कि हमारे एक बहुत बड़े शायर थे जिनका नाम था हफीज़ जलंधरी साहब, उनका एक बहुत बड़ा एजाज़ ये है कि उन्होंने कौमी तराना तहरीर किया, उनको किस लक़ब से याद किया जाता है? जलंधरी। बेटा, जलंधरी लक़ब नहीं है कि निस्बत है, जलंधरी एक लक़ब नहीं है, एक निस्बत है। उनको किस नाम से याद किया जाता है? अबुल असर। अबुल असर कभी नाम सुना है आपने कि नहीं? असर का बाप, प्लीज़ खुदा के लिए बिल्कुल उनके। अच्छा बहुत, और आगे चलते हैं सर। अगला सवाल आपसे करते हैं, और आपके कॉलेज और आपके लाहौर शहर के मुताबिक है बिल्कुल सब कुछ। ये फरमाइए कि मुझे सर ये बता दीजिए, ये आखिरी सवाल है, बज़र राउंड से बाद हम ये ख़त्म कर देंगे, कि एक ऐसी हस्ती का नाम बताइए, एक ऐसी हस्ती का नाम बताइए कि जिसके बारे में सरकार दो आलम ने कहा कि मैंने सबका एहसान उतार दिया। हज़रत अबू बकर। वेरी गुड। इसके साथ ही हमारा बज़र राउंड ख़त्म हुआ, और हमारे जो विनर हैं आज के वो मुआज़ हैं। मुआज़, आइए तशरीफ़ लाइए जल्दी से, और हमारे मेहमान हैं। और अल्लाह करे कि अगली दफ़ा जब तुम किसी को इस कंपटीशन में आओ तो अपना फ़ोन बंद करके आओ या साइलेंट पे रख के आओ। समझ आई मेरी बात की? मैंने उठा के लेना था वैसे फ़ोन, लेकिन तुम्हारा क्या किया जाए, फ़ोन के बगैर तुम लोगों की, आप यकीन करें ऑक्सीजन के बगैर रह सकते हैं हमारी कौम आजकल। ये बच्चे फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते, आजमा के देख लें। बिल्कुल। आप सरफराज इनको ये रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि घर जाके आप इसको घोल के ठंडे पानी के अंदर शरबत खुद भी पिएंगे और अपने घर वालों को भी पिलाएंगे। उसके अलावा हमसे जो दूसरी चीज़ इनको देते हैं वो ये ईवा बनास्पति वालों का गिफ्ट हैम्पर है। इसको हमेशा नीचे से उठाना पड़ता है क्योंकि वज़नी बहुत है, और ये भी कबूल कीजिए आप। और बहुत मेहरबानी ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही मेरे ज़ब्त का और मेरे तहम्मुल और बर्दाश्त का इम्तिहान जो आज शुरू से लिया जा रहा है, उसका एक और मरहला तमाम होता है। हमारे साथ रहिए और देखते हैं कि अगले ब्रेक में कोई खुशगवार उम्मीद रखें या ना रखें।